بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہنگامی طور پر اس پریس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان کے مشورے سے آج کا بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک سے عام آدمی کی چیخ و پکار آسمان پہ پہنچ رہی ہے۔ آئے روز مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ غریب آدمی خودکشیوں پہ مجبور ہو گیا ہے۔ ان سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اور پھر اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، اپنے بچوں پر بھی کھیل جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ پی ڈی ایم ایک مؤثر اقدام کرے۔ چنانچہ ہم فوری طور پر اگلے 2 ہفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ 19 کو 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کی تقریبات سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ملک بھر میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کیے جائیں گے۔ تب تک ہم پی ڈی ایم کی تمام ذیلی تنظیموں کو ہدایت کرتے ہیں، صوبائی تنظیموں کو بھی، اور صوبوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی ضلعی تنظیموں کو ہدایت کریں کہ وہ باہمی طور پر خود بھی رابطے میں آ جائیں اور شہر کے اور پورے علاقوں کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے کسان ہے، جو اس وقت ملک کا ہر شہری اس ساری صورتحال سے متاثر ہے، ضروری ہے کہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر بھرپور قسم کے مظاہرے ملک کے طول و عرض میں شروع کر دیے جائیں اور اس کا تسلسل جو ہے پھر باقی رہے گا۔ جو ہی ایک مرحلہ مکمل ہوگا تب تک پی ڈی ایم اگلے مرحلے کا اعلان کرے گی اور اس طریقے سے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں ایک بھرپور تحریک شروع کی جائے گی۔ کل 18 اکتوبر ہے اور اسلام آباد مسلم لیگ ہاؤس میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے علاوہ ایجنڈے پر کچھ دوسرے امور بھی ہیں جس پر متفقہ موقف اختیار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اسے میڈیا کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ہمارے فیصلے قوم تک پہنچ سکیں۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات دلانے کے لیے قوم کو اب گھروں سے نکلنا ہوگا، عام آدمی کو میدان میں آنا ہوگا اور پی ڈی ایم ان کی قیادت کرنے اور ہر محاذ پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ بلکہ آگے ہو کر اس محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے ہم اپنی تنظیموں کو باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں۔ ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مظاہروں میں، ریلیوں میں اور جو مارچ ہیں تو اس میں بھرپور شرکت کریں اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ میدان میں آئیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے حکمرانوں کو جو قوم کے لیے عذاب بن جائیں ان کو مزید قوم پر مسلط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ 3 سال پہلے پاکستان کے
कुल कर्जे का हुजम 25,000 अरब रुपए था और इस वक्त 45,000 अरब हो गया है। ये कौम कैसे अदा करेगी? कौम के बच्चे किस तरह इसके मुतहम्मिल होंगे कि हम 3 साल पहले मुल्क का माशी ग्रोथ यानी सालाना तरक्की का तखमीना 5.8% था और अब हम मनफी में जा रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को जो जाली भी हैं और नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, करप्ट भी हैं, तो इनको कौम पर मुसल्लत होने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की हैं। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए से 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपए यकदम एक दिन के अंदर बढ़ा देना, ये कौम के साथ जुल्म के अलावा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है? हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें ग़ुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो ग़ुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फ़ैसला किया है और अवाम को अपील की है कि वो मैदान में आएँ। PDM इंशाअल्लाह आपके साथ कदम ब कदम है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के लिए जैसे चरागाह बना दिया है। बहुत तर लुक़मा है, जब वो चाहें हमें चबा कर निकल जाएंगे। PDM पहले भी कह चुकी है कि सेलेक्टेड और नाअहल और नाकाम हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और ये एक करप्ट तरीन हुकूमत है। अवाम ये ज़रूर सवाल करेगी कि इसमें आखिर कसूर किसका है? दोनों पर सवाल तो आता है, सेलेक्टेड पर भी आता है, सेलेक्टर्स पर भी आता है। और हुकूमत 22 करोड़ अवाम की नहीं, IMF की लगती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया खुर्दनोश को 100% महंगा कर दिया है, बल्कि अद्वियात तो 400% तक महंगी हो गई हैं। ये वो ऐलान था जिसके लिए हमको तकलीफ दी गई। साहब ये बताएं कि वैसे भी हुकूमत का चल चलाव है, लग ये रहा है कि जो मुल्क के हालात हैं इदारों से भी मुतसादम है और चल चलाव लग रहा है, तो क्या ये चंद दिन की हुकूमत रहेगी? इस चंद दिन के लिए भी आप लोग पार्लियामेंट से मुस्तफी हो सकते हैं सर? आपके मुंह में गुड़, शक्कर। बुनियादी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि कल PDM का इजलास है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगी। आज सिर्फ एक एजेंडे पर हमने आपको तकलीफ दी है, आपका शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा सर, ये मुतहदा अपोजिशन की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है और बाकी जो जमातें निकल गई थी या और मजीद जमातें हैं, उस तरफ भी कल तवज्जो दी जाएगी। दावत है मेरे ख्याल में, ये तो हमने अवाम को दावत दी है और सब लोग उसमें शरीक हो सकते हैं, कोई पाबंदी किसी। ये बताइएगा कि जब PDM बनी थी तब भी अवाम आपके साथ थी और आप इस मामले पे तहरीक को खुद पीछे ले आए। अब आपको क्यों आप तो कर रहे हैं कि अवाम आपके साथ है? महंगाई का सारा सूरत आपके सामने, आप क़यादत करें, अवाम तो आपके साथ होगी। क्या आपको डर है किसी चीज़ का कि कोई रुकावट ना बन जाए? नहीं, कोई डर नहीं है हमें, कोई रुकावट भी नहीं बन सकता। कुछ मारूजी वजूहात ऐसी आई हैं जिससे कि एक तासुर लिया गया है कि जैसे हमने तहरीक पीछे आई है। वो जो मारूजी वजूहात होती हैं, जब वो वक्त गुजर जाता है तो लोग फिर उन मारूजी वजूहात की तरफ नहीं देखते, आपकी कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं। ये इसी किस्म का एक सवाल है जो एक हकीकत भी है, लेकिन उसका मारूजी हालात से ताल्लुक है। ये बताइएगा कि सेलेक्टर और सिलेक्टेड के दरमियान भी कोई रिफ्ट आपको नजर आ रही है? देखिए,
ये शायद उनके घर का मामला हो। अच्छा मौलाना और 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 फिर उसमें आपको याद होगा कि जहाँ पर जादू बीच में आता है तो फिरौन के जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के बीच में जब मुकाबला हुआ तो डंडा ही जीता है ना। एजाज सैयद साहब, आपने एक टर्म मुतारफ करवाई थी, आपने बड़ा लतीफे सुनाए थे, निका और निके का अब्बा। अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह निका गलत है और निके का अब्बा ठीक है, आपकी नजर में कौन ठीक है? निका भी ठीक है और निके का अब्बा भी ठीक है, या निके का अब्बा और निका दोनों गलत? मतलब ये है जी कि मतलब ये कि महबूब मेरे कदमों में। हाफिज हम्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छा जुमला दिया है कि तावीज़ जारी निकला और महबूबा गले पड़ गई। हुए हैं और उसके अलावा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो ग्रुप है वो आपके मुखालिफ चमके जा रहे हैं। उनका इंटरनल मैंने आज सबसे पहले जो राब्ता किया है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से किया है और उनके साथ टेलीफोन पर ये तजवीज़ मैंने दी, उन्होंने कबूल की है। उसके बाद मैंने PDM के तमाम अकाबिरीन से फ़ोन पर बराह रास्त राब्ते किए हैं। अख्तर जान महंगल साहब से मेरा राब्ता हुआ, वो दुबई में थे। महमूद खान अचगज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना उवैस नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम जमातों के आफ्ताब शरपौ खान साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं, उनसे मैंने फ़ोन पर बात की। ये तमाम हजरात ऑन बोर्ड हैं और इस वक्त जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ PDM की बात कर रहा हूँ। आप एक बात गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप सहाफ़ी हजरात भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस कौम का हिस्सा हैं। जहाँ एक रुख पर एक इत्तेहाद चल पड़ता है, उस पर बार बार एक ऐसा सवाल जो इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं महसूस करता, वो सवाल बार बार ज़िंदा करके आप एक कौमी तकसीम का तस्वर क्यों देते हैं? हमने तो अपने जलसों में कौमी तकसीम नहीं देखी। हमारे पास तो कराची में जलसे किए हैं, उस पर कोई हमें कमी नज़र नहीं आई। हमने स्वात में जलसा किया है, हमें उससे ज़्यादा इजाफे के साथ लोग नज़र आए हैं। हमने कल फैसलाबाद में जलसा किया है, भरपूर तारीखी जलसा था। तो हमें तो पब्लिक की शराकत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया है। तंजीमी मामलात होते हैं, कहीं पर कुछ एक्शन लिए जाते हैं, सो उन इलेक्शनों को बुरा मनाया गया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम इस पर बहस नहीं करना चाहते। हम इस वक्त पूरी कौम को एक सफ़ में देखना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ तो हमारी तरफ से भी एक बाइज़्ज़त और बावक़ार जवाब दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये क़ब्ल अज़ वक्त सवाल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़ास करके अभी जो सूरत बनती जा रही है, इसमें जो अगला जो आपका टारगेट होगा, जो आप कह रहे हैं कि तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स में होगी, तमाम जमातों का क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे कि एहतजाज की कॉल ताकि हुकूमत पर प्रेशर पड़े? ज़ाहिर है जी कि तो 2 जमा 2 4 की तरह पब्लिक जो है वो सड़कों पे आएगी, सियासी जमातें उनके साथ होंगी, PDM उनकी क़ियादत करेगी और PDM की आपस की जमातें भी आज के फ़ौरन बाद इस ऐलान के बाद वो आपस में वो राब्ता करेंगे। नहीं जी, चांस नहीं है। आपकी चांस है अगर आप आना चाहते हैं। बलूचिस्तान में अगर कोई तब्दीली आती है तो PDM का क्या मौक़िफ़ होगा अगर कोई तब्दीली लाने की कोशिश की जाती है? अभी तो कोशिश तो जारी है, लेकिन अब क्या नतीजा निकलता है इस पर मैं फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकता। टेन्योर का तो पूरा करना सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगर सिविल बलादस्ती की दावत वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म कहा, मैं एहतजाज करता हूँ इसके ऊपर। क्या आप उनकी दावत कबूल करेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना साहब इन्हीं जलसों हम कोई कच्चे खेल नहीं खेल रहे जी। इस तारीख को इन्हीं जलसों तक महदूद रखा जाएगा कि अगले मरहले में भी? मैंने ऐलान क्या किया है उसको तो सुना आपने ना। अभी जो ऐलान किया है उसके बाद भी इस सवाल का कोई गुंजाइश। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी।